Just a minute. Yeah, recording Sir, I will started. tell. Sir, we can see another's face, but we can't see our face without mirror. Uh, nice. Repeat it again. We can see others' face, but we can't see our face without mirror. Correct. Sir, I can say one quote. Sir, can I say one thought? I think it is Em- whose turn it is about thought. Don't know, sir. Can I say? Okay, Yashita. Malik, tomorrow you will say tomorrow yes, is your birthday, so you will of course say one nice thought. So let us hear from Yashita. Yes, Yashita. Sir, 1 minute. Huh. When nothing goes right, goes Vineet, Vineet, mute yourself. Okay. Yes, Yashita. Tell me. when nothing goes right, go left. Very short and sweet. When nothing Sir, goes right, go left. Yes, there is sir, figurative meaning. Yes, Maulik. emotion is fuel to spirit. Okay. Good thought. And you have got it from somewhere. I know. Yes, sir. From you only. Yes, of course, emotion is the fuel of spirit. Without emotion, there is no point of having spirit. ठीक है, स्पिरिट मीन्स सोल, हमारा जो सोल है, अगर वहाँ इमोशन ना हो तो वो सोल कैसा होगा? नमक बिना सब्जी टाइप का है नहीं? कभी खाए हो क्या नमक बिना सब्जी? यस सर। कितना भी अच्छा बना ले लेकिन नमक नहीं डालने से टेस्ट नहीं मिलता है ना? और विनीत, विनीत जैन, यस सर। I think you should sit at a quiet place. ओके सर। Okay. So let us start then. ठीक है, आज शुरू करते हैं. अच्छा, today's lesson, today's class, it would be integrated. What does mean by integrated? Very simple. See, this is a course book, Unit 5, Life Simple Comedies. So in this unit, you will learn a comedy-based story, that is विदेशिया बाबू. एक्चुअली विदेशिया है लेकिन हम लोग क्या है श को स बोलते हैं छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में, है ना? देश, देश नहीं बोलते हैं. ठीक है, सो विदेशिया वहाँ के टोन के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे? विदेशिया बाबू. ठीक है, तो yes, I was talking about integrated lesson. That means today we will connect grammar with literature. ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? एक लिटरेचर का पार्ट है. तो इस लिटरेचर पार्ट को हम कनेक्ट करेंगे ग्रामर से, और वो कैसे अभी पता चलेगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं. यूनिट 5, लाइफ्स सिंपल कॉमेडी. Okay, everyone keep yourself mute. Whenever I will ask, then only you can unmute. ठीक है. So unit 5 का section 1, विदेशिया बाबू. विदेशिया बाबू really a full comedy story. So before starting this story, we need to know about the characters. ठीक है, characters को जानना बहुत जरूरी होता है. जैसे मूवी शुरू होने के पहले हीरो हीरोइन और बाकी लोगों का पता चलता है, तो इसमें कैरेक्टर्स में मेन कैरेक्टर जो है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो कौन है? विदेशिया बाबू, जिनका रियल नेम क्या है? देवनाथ चौधरी. उसके बाद एक कैरेक्टर है मोतिया, और एक कैरेक्टर है, नाम तो बड़ा इसका प्यारा है, खिचड़ी. ठीक है, और वो है भी खिचड़ी. और एक है बंदा जिनका नाम है बदली. बदली जो है वो विदेशिया बाबू, एक्चुअली विदेशिया बाबू एक मतलब कौन है अभी आगे जाके पता चलेगा ऑफ कोर्स. तो उनका एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस में पियून का काम करता है कौन? बदली. तो ये चार में मतलब कैरेक्टर्स है जो
इस स्टोरी में काफी रोल है इनका। इसके अलावा दो चार और कैरेक्टर है जो कि गेस्ट अपीयरेंस है, छोटा सा अपीयरेंस है उनका। ठीक है, तो हमें चार कैरेक्टर याद रखना है, विदेशिया बाबू, मोतिया, खिचड़ी और बदली। सबसे बढ़िया कैरेक्टर तो मेरे को खिचड़ी लगता है, नाम भी प्यारा है। ठीक है, अब आते हैं स्टोरी पे। यहाँ पर बोला गया है कि रीड ऑन टू फाइंड आउट अबाउट विदेशिया बाबूज फैंटास्टिक इन्वेंशंस। ठीक है, ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि विदेशिया बाबू का जो फैंटास्टिक इन्वेंशंस है उसके बारे में। दैट मीन्स विदेशिया बाबू इज नॉट अ कॉमन मैन, ही इज एन इन्वेंटर। और भी है वो, साथ साथ बहुत कुछ है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि टुडे वी विल हैव integrated class. We will connect grammar with literature. So what does mean by this? So now I will ask someone to read the paragraph, okay? And other students, you will have to be ready with the tense of the paragraph. If I ask that, okay, tell me what is the tense of this particular line, so you instantly have to say, sir, it is this tense. Okay? And you have to also find, if you, I mean if you get any participle, gerund or infinitive, okay, so you have to find those things. And one more important thing, that is types of sentences. अब सर पे हाथ मत रखना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आई होप आपको याद होगा। याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ Interrogative, declarative, imperative, Affirmative. exclamatory, एक्सक्लेमेटरी। material. ठीक 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 ठीक, करेक्ट। तो हर एक सेंटेंस को आप उसी तरह से देखेंगे। पहले तो उस सेंटेंस का टेंस निकालेंगे, उसमें आप ढूंढेंगे कोई इन्फिनेटिव, जिरांड या पार्टिसिपल है कि नहीं, और वो किस टाइप के सेंटेंस है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट देन। जिसको मैं रीडिंग करने के लिए पूछूंगा वो ग्रामर पे ध्यान नहीं देंगे, वो रीडिंग पे ध्यान देंगे। बाकी बच्चे जो है वो ग्रामर पे ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा पहला पहला पैराग्राफ चलो मैं पढ़ता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। अच्छा 3 लोगों ने हाथ उठाया, ऑफ कोर्स आपको मौका मिलेगा, डोंट वरी। सो फर्स्ट पैराग्राफ, लेट मी रीड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू रीड। यस नैतिक, आपको भी मौका मिलेगा, डोंट वरी। ओके 3 2 1। In Pipli town in Hazaribagh district of Bihar lived Videsiya Babu. You might want to know why he was called Videsiya or Videshiya or foreigner Babu. So Videsiya Babu matlab foreigner Babu. It wasn't because he had traveled to distant lands or anything like that. About 20 years ago, he had gone to his grandfather in village Kirimiri and stayed away for 2 whole months. But because he had gone far away in a train and come back wearing shiny new brown boots with black laces and sola topi on his head, people thought he was a very well-traveled sort of man. So they called him Videsiya Babu. His real name was Devnath Chaudhary. But no one called him that, not even his own mother, who was nearly 100 years old. Oh my God, a lady 100 years old. Okay. So if I ask you like that, have you get any past perfect sentence? Yes, my dear students, I'm waiting for your answer. In this paragraph, do you have found any past perfect tense? If you have found, then tell me fast. Unmute yourself and tell me. Now you can unmute yourself. Yes, Nati? Sir, can I tell?
Yes. Sir, his real name was Dibnat Chaudhary. Yes. Tell me the. सर विनीत Sir, थोड़ा सा आवाज आ नीट रही के है। करते yes आवाज sir, आ रहा बहुत आवाज आ रही है. है हाँ विनीत विनीत. चलो आवाज आ रही है। विनीत म्यूट योरसेल्फ बेटा. Okay. Yes. Sir, can I tell? And sir, can I tell? हाँ yes. Everyone can tell one by one. Maulik. About go he had gone to visit his हाँ. grandfather Yes, sir, at village Kirmiri. Okay. So why it is Past perfect tense. why it is past perfect tense? Sir, because had and Had and gone. Third form of verb. Good. Very good. Very good. Vineet, So please mute yourself. uh, okay. And have you find any infinitive? Have you found? Yes, sir, to visit. Yes. Sir, one more. Sir, one more. He had traveled to distant lands or anything like that. Yes, this is also past perfect tense. Good. And now tell me one thing. Which tense is very, very common in this paragraph? But many times the tense has been used. Which tense? Past. पास्ट टेंस पास्ट पास्ट Past tense. Past. Past अभी tense. फिर से मार खाओगे तुम लोग. सर स्टोरी में तो पास्ट टेंस ही होता है ना। हाँ पास्ट टेंस में होता है लेकिन पास्ट के अंदर भी तो 4 कैटेगरी है ना. सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. Yes, तो sir. आपको ये बताना है कौन सा पास्ट टेंस. Sir, simple past. सिंपल पास्ट यस. इस पैराग्राफ में सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है सिंपल, Simple Past. past. और बीच बीच में पास्ट परफेक्ट भी यूज हुआ है ना. चलो ठीक. तो बहुत अच्छा है. देखो अभी ग्रामर भी सब याद हो जाएगा धीरे धीरे. वेरी गुड. बाकी लोग से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिस्पांस देंगे लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कम हो गया है. विनीत जैन. ओ कम ऑन विनीत बेटा, कोई एक शांत सा कोना ढूंढ लो बेटा. बहुत हल्ला हो. सर वो ना रेडिएशन आ रही है मेरे ब्लूटूथ वाले मतलब हेडसेट से. सर मोबाइल और ना करना तो बहुत आवाजें आती है. डिस्कनेक्ट कर. बेटा बेटा आज के लिए तुम अपने आप को म्यूट रखो. तुम बस चैटिंग पे जवाब दो. ठीक है. ओके नाउ लेट अस मूव. अच्छा ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन तो हुआ नहीं बट आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा. Yes, sir. देवनाथ चौधरी जो है वो विदेशिया बाबू के नाम से जाने जाते हैं. उनकी मम्मी भी उनको विदेशिया बाबू ही कहते हैं. उनका असली नाम जो है लोग कोई उनका असली नाम से नहीं बुलाते हैं और वो इसलिए क्योंकि एक बार वो किरमिरी गए थे अपने ग्रैंडफादर को देखने के लिए और वो वहाँ 2 महीने रहे. जब वो वापस आए तो उनका जो अपीयरेंस है वो टोटली डिफरेंट हो गया. वो गांव वाले भैया नहीं लग रहे थे. टोटली डिफरेंट. मतलब ब्राउन बूट्स पहने हुए थे एकदम चमकता शाइनी शाइनी बूट्स. उसके बाद एक सन हैट. ठीक है. तो ही वाज लुकिंग लाइक अ पर्सन हु यूज्ड टू ट्रैवल, है ना. तो इसीलिए उनको जो है विदेशिया बाबू नाम दिया गया था. ठीक है. अब अगली पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं. अरे बाप रे ये क्या है देख रहे हो. इसे बोलते हैं एनोफिलिस मॉस्क्वीटो. बहुत खतरनाक मॉस्क्वीटो है ये. ओके Sir, नाउ. which bite? हाँ अभी सम मैरिड जस्ट अ मिनट फॉर श्योर. सर मैं आई रीड. एक मिनट. जिनको नहीं चांस मिलता उनको चांस देना चाहिए पहले. सर मुझे नहीं मिलता. अच्छा नैतिक जन. चलो ठीक है नैतिक पढ़ो. Actually, Vidisha Babu was two people. On weekdays, he worked as a geologist in the government survey office, and on Sundays he worked as an amateur inventor Amateur. and Amateur. and homeopathic doctor. Once the Raja of Hathi paid him a visit to present him with a mosquito net embroidered
with, can you believe it, giant Anopheles. mosquitoes for Giant, curing giant Anopheles ano- mosquitoes. giant Anopheles mosquitoes for curing him of jungle malaria and Hiccups. hiccups, 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 and the chief engineer developed a cr- Crick. crick in his back, crick in his back, which Vidisha Babu then had to cure. When he bent to thank Bibi for filling the coal, Old old coal quarry. quarry with water and turning it into a lake. Among the automatic can openers and 5-second math problem solvers that B. Babu invented was his most famous invention. This was the immediate Upstar Finder, a little box with big antennae Antenna, that antenna. picked Antenna होता है up ना? antenna that picked up nervous responses typical to troublemakers. As you may imagine, this was a terrific thing to have at, at a mela. It always pointed out exactly who was going to plant a cracker under the head Havaldar's seat or who was planning to purlian the Payesh Handi when the principal Pujari was having 40 wings. Okay. Okay, Natik. Well tried. Just Natik, remember two, three things. When there is full stop and when there is a dash, you must stop there. Okay. Okay. रीडिंग इट वाज ओके नो प्रॉब्लम बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको इंटोनेशन का यूज करना है जैसे मैं कभी आवाज स्लो कर देता हूँ कभी स्ट्रेस करता हूँ कभी पिच हाई करता हूँ ओके सो इन दैट वे यू नीड टू ट्राई एंड ऑफ कोर्स यू विल डेफिनेटली डू इट और तुम्हारे एज में मुझे भी ये सब बहुत मुश्किल से आता था कोई बात नहीं आ जाएगा सबको ठीक है सो बाकी बचे स्टूडेंट्स क्या इस पैराग्राफ में कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है टेल मी डू यू हैव फाउंड एनी इंपेरेटिव सेंटेंस Can you believe it? हाँ यस Sir है. हाँ देन टेल मी व्हिच वन Sir, that one. यस टेल द सेंटेंस Sir, he is not ordering anything, so no imperative sentence. हाँ एनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस Yes, sir. Can you believe it? Sir, two. Giant Anopheles mosquito. Giant Anopheles mosquitoes. Can you believe it? And can you believe it? yes so all the students pay attention जब नैतिक ने इस सेंटेंस को पढ़ा तो उनका वॉइस जो है नॉर्मल था कैन यू बिलीव इट जायंट एनोफिलिस मॉस्किटोस तो ये एक्सक्लेमेशन नहीं लग रहा है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि वो एक्सक्लेमेशन लगे यस कोई ट्राई करना चाहते हैं Yes, sir. Sir, what? Yes, sir. Can you believe it? Gained Anopheles mosquitoes. Can you believe it? Giant Anopheles mosquitoes. यस थोड़ा सा और टेम्पो स्लो कर सकते हो कैन यू बिलीव इट जायंट एनोफिलिस मॉस्किटोस ठीक है सो तब लग रहा है कि हाँ वो एक्सक्लेमेशन है ना ओके सो टेंस ठीक है टेंस तो आपको पता चल ही गया है कोई पार्टिसिपल नहीं है ना एनी पार्टिसिपल
एक इन्फिनेटिव है, मुझे तो एक इन्फिनेटिव मिला, आपको मिला? डू यू हैव गॉट इन्फिनेटिव? यस, मैं जीत गया इस बार। Yes, sir. Yes, sir. दो मिला। I got, sir. I Once, took it. once the Raja of Hathi paid him a visit to present. हाँ, Which Videsha Babu then had to cure. और एक है। Yes, yes, sir. हाँ ठीक ठीक, Had to cure. एग्जैक्टली, गुड, क्या बात है, इन्फिनेटिव मिल गया आप लोगों को। Sir, ठीक एक और है, एक और है, एक और है. है। Sir, This was a cracker. This was a terrific thing to have at a mela. हाँ, sir एक और है. कौन सा? टू ट्रबल मेकर्स। Who was going to plant a cracker under two? हाँ हाँ, नहीं वो क्रैकर वाला बताया ना अभी मौलिक। ठीक, No sir, वो terrific thing थी, उसके नीचे cracker वाला एक और है. हाँ हाँ, यस यस, तो इसमें कई सारे इन्फिनेटिव यूज हुआ है, लेकिन सर पार्टिसिपल। ये सर एक और है. कहाँ है? तो नहीं है. Who was planning to Purloin. luring ऐसा है. हाँ, ये भी एक है। परलोइन जो है वो एक एक्चुअली इस स्टोरी में ना Sir, कहीं कहीं। will into also come in infinitive? हाँ, यस यशिता। Sir, will into also come in infinitive? वेयर इज द लाइन? आर यू आस्किंग टू ट्रबल मेकर्स? Okay, so to understand this Sir, paragraph, today only 13 students are there. only 13. Okay, no problem. कोई बात नहीं, जो बच्चे हैं उनके लिए फायदा है, जो नहीं है उनके लिए नुकसान है। Let them have the loss. Okay, so to understand this paragraph, कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। एक है क्रिक। क्रिक का मतलब होता है पेन, दर्द। क्वारी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर सैंड इज डग आउट, मतलब कोई रिवर का ही देख लो, या कोई मान लो प्लेस है जहां से सैंड को खोद लिया गया, तो वो क्या गड्ढा बन जाता है, वहां एक छोटा सा गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, तो वो उसे हम क्वारी कहते हैं। और 40 विंग्स मतलब शॉर्ट स्लीप, ये एक फ्रेज है 40 विंग्स, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट स्लीप। तो सर क्वारी तो मतलब लड़ना भी होता है ना? वो तो उसको क्वाल बोलते हैं, क्वाल, QUA। Quarreling ऐसा. ये तो क्वारी है, ठीक है। और एक है क्वेरी। क्वेरी जब हम कुछ चीज पूछते हैं, ठीक है। सो और एक वर्ड है एमेचर। एमेचर का मतलब ये होता है कि वन हु वर्क्स विदाउट पे फॉर प्लेजर। Sir, Antony means Antony. Antenna. एंटीना बेटा वो। Oh, sorry, sir. I wasn't able to spell it. Sorry. ओके, ठीक। सो अब ये इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन क्या है, बड़ा सिंपल है कि विदेशिया बाबू वाज टू पीपल, मतलब एक्चुअली है तो वो एक ही, लेकिन उनके अंदर दो टैलेंटेड लोग हैं उनके अंदर, मतलब क्या बोलना चाहिए, स्प्लिट पर्सनालिटी। तो ऑन वीकडेज ही वर्कड एज अ जियोलॉजिस्ट इन द गवर्नमेंट सर्वे ऑफिस। तो इनका जॉब है, ठीक है, जियोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज ऑन अर्थ, उन्हें जियोलॉजिस्ट कहेंगे। और वो कहाँ काम करते हैं? गवर्नमेंट सर्वे ऑफिस में वो काम करते हैं। लेकिन संडे के दिन, वीकडेज मतलब मंडे टू सैटरडे, संडे के दिन वो क्या करते हैं? ही वर्क एज एन एमेच्योर इन्वेंटर एंड होम्योपैथिक डॉक्टर। बाप रे, तो 3 दिन काम करते हैं। क्वाइट टैलेंटेड पर्सन। सो एमेच्योर इन द सेंस कि जो काम आप अपने प्लेजर के लिए करते हो, पैसों के लिए नहीं करते हो, उसे हम लोग एमेच्योर कहते हैं। ठीक है, सर यस बेटा। सर एमेच्योर को चैरिटी वर्क भी बोल सकते क्या? चैरिटी तब, हाँ कह सकते हैं, जब आप लोगों का भला करते हो, व्हेन यू डू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट टाइम यू कैन से।
ठीक है, तो सर। यहाँ एक्चुअली कंप्लीटली चैरिटी भी नहीं है, मतलब हाँ वो विदाउट पे काम कर रहा है, उनको अच्छा भी लगता है, he finds pleasure। स्पोर्ट्स के साइड में एमेच्योर मतलब प्राइमरी लेवल होता है। अच्छा, गुड गुड, एक नया चीज पता चला सबको, याद रखना सब। अरे बाप रे, जूम ने बता दिया 10 मिनट बाकी है। हाँ, तो उसके बाद एक सर जायंट एनोफिलस मॉस्किटो मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया। ये जो पिक्चर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मतलब जायंट लिखा है, मतलब कितना बड़ा होगा? हाँ देखो, अब जैसे एक मच्छर की, जब मैं एक मच्छर बोलता हूँ, सर तो मच्छर बोलने से तुम क्या सोचते हो, छोटा सा एक फ्लाई। अब ऐसा थोड़ी ना सोचते हो कि एक ड्रैगन होगा भाई, या फिर एक कम से कम काऊ के साइज का कोई एनिमल। ठीक है, तो ये जो मच्छर, जंगल के जो मच्छर है ना, वो थोड़ा नॉर्मल, हमारे घर में जो मच्छर है उससे बड़ा ही होता है। तो उसका मतलब जस्ट टू एम्फसाइज इट, हम लोग कई बार चीजों, सर वो मलेरिया वाला रहता है ना? हाँ 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 हम कितना सर कितना डेंजर रहता है। हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंस द राजा ऑफ हाथी, हाथी एक जगह है, paid him a visit to present him with a mosquito net embroidered with can you believe it, giant anopheles mosquitoes for curing him of jungle malaria and hiccups। तो एक बार विदेशिया बाबू ने एक इन्वेंशन किया था, मॉस्किटो नेट। ठीक है, और उसे वो एक राजा को दे देते हैं, इसलिए जंगल में बड़े बड़े एनोफिलीज मॉस्किटोज घूमते हैं, और राजा महाराजा लोग शिकार विकार के लिए जाया करते हैं ना जंगल में, तो उनको मलेरिया से बचने के लिए उन्होंने एक मॉस्किटो नेट गिफ्ट किया था। और अब ये मॉस्किटो नेट जो गिफ्ट किया है, इसे थैंक यू बोलने के लिए राजा का जो चीफ इंजीनियर है, उन्होंने थैंक यू बोलने के लिए एक क्वारी में पानी भर भर के उसे लेक बना दिया। ठीक है, मतलब ये लेक जो है वो उनके लिए डेडिकेटेड था, विदेशिया बाबू के लिए, लेकिन वो बार बार झुक के पानी उठाना, पानी डालने के चलते उनके कमर में जो है दर्द हो गया, उस इंजीनियर के कमर में। तो उनका दर्द भी जो है विदेशिया बाबू को ही ठीक करना पड़ा। ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है विच विदेशिया बाबू देन हैड टू क्योर। ठीक है, आगे क्या है कि अब उनके कुछ इन्वेंशंस के बारे में हमें पता चलेगा। Among the automatic can openers and 5-second math problem solvers that B. Babu, मतलब विदेशिया बाबू invented was his most famous invention। ठीक है, this was the immediate upstart finder, a little box with big antenna that picked up nervous response typical to trouble makers। So उनके कुछ inventions है, ऑटोमेटिक कैन ओपनर्स, 5 सेकेंड मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या बात है, ये मशीन मिल जाए तो बढ़िया, मजा आ जाएगा ना, 5 सेकेंड के अंदर हमारा मैथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उनका जो सबसे बेहतरीन इन्वेंशन है वो क्या है, अपस्टार्ट फाइंडर। वो क्या है, यहाँ पर इमेज में देख लो, ये जो मशीन यहाँ पर दिख रहा है, 2 एंटेना दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ एक नीडल है। सर ये क्या कर, हाँ सर ये दिस क्या, इज विदेशिया बाबू। हाँ ये क्या करता है, ये पिक करता है नर्वस रिस्पॉन्सेस टिपिकल टू ट्रबल मेकर्स। मतलब जब कोई बदमाशी करने लगे तो ये मशीन बता देगा कि हाँ अब यहाँ बदमाशी होने वाला है या बदमाशी करने वाला है। ठीक है तो ये डिटेक्टर जैसा काम करता है। अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा है, या बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत नॉइज हो रहा है, तो उन सब चीज को डिटेक्ट करता है ये अपस्टार्ट फाइंडर। ठीक है ये कैसे इन्वेंट? well, this is a comedy story, so nothing real in this, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन चलो बस एंजॉय करो स्टोरी को। अब आगे क्या है, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली पैराग्राफ में इसे बांटना चाहिए था,
है ना, इसमें क्या मिक्स है, इसमें कई सारे कहानी एक साथ एक ही पैराग्राफ में डाल दिया गया है। कभी राजा का कहानी आ गया तो कभी उनका इन्वेंशन का कहानी आ गया। नेक्स्ट क्या है, as you may imagine this was a terrific thing to have at a मेला। अब अपस्टार्ट फाइंडर का काम क्या है कि ट्रबल्स को ढूंढना, कौन कहाँ ट्रबल हो रहा है वो ढूंढना, कहाँ कैओस हो रहा है उसे ढूंढना। अब मेला, जब हम मेला की बात करते हैं तो मेले में तो भाई ट्रबल मेकर्स ही भरे पड़े हैं। तो अब जस्ट इमेजिन व्हेन यू पुट दिस इन्वेंशन इनटू अ मेला, तो व्हाट विल हैपन, वो तो मतलब Sure. हर सेकंड में एक एक ट्रबल ढूंढ के बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला भी गया है कि इट ऑलवेज पॉइंटेड आउट एग्जैक्टली हु वाज गोइंग टू प्लांट अ क्रैकर अंडर द हेड हवलदार सीट, और हु वाज प्लानिंग टू परलॉइन द पायश, पायश जो है अब खीर, जिसको हम लोग खीर भी बोलते हैं। ठीक है, Purloin means परलॉइन मीन्स Purloin. चोरी करना। ठीक है, तो देखो जैसे, हाँ, परलॉइन द पायश, पायश हिंदी व्हेन द प्रिंसिपल पुजारी वाज हैविंग 40 विंग्स। तो प्रिंसिपल पुजारी का मतलब मंदिर, एक मंदिर है वहां, और मंदिर मतलब प्रसाद, और प्रसाद में क्या है, पायश। तो कोई अगर पायश को चोरी करने जा रहा है तो उस तरफ पॉइंट करता है ये अपस्टार्ट फाइंडर। अगर कोई हेड हवलदार के सीट के नीचे क्रैकर फटाका रखने जा रहा है तो उसको पॉइंट कर रहा है। तो एक मेले में ये सब कॉमन है और बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अपस्टार्ट फाइंडर हर सेकंड हर मिनट किसी ना किसी को पॉइंट कर ही रहा है जो कुछ सर क्रिएट सर कर। हाँ बेटा, सर आपने बोले कि अब स्टार्ट फाइंडर शोर कहाँ शोर हो रहा है उसका डिटेक्ट करता है, तो मेरे में तो बहुत शोर होता रहता है ना। हाँ उसका, बट बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है कि कौन ट्रबल करने जा रहा है उसे फाइंड करना। ठीक है, तो कौन ट्रबल कर रहा है उसके साथ साथ ये शोर को भी डिटेक्ट करता है, क्योंकि इसके आगे कुछ होने वाला है स्टोरी में जिसमें बहुत ज्यादा एक कैओस बनता है और उसे पॉइंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका इस इन्वेंशन का जो काम है कि कौन ट्रबल क्रिएट करने वाला है उसे ढूंढो, और वो ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढता है ये तो विदेशिया बाबू को मालूम है, उनसे पूछना होगा। ठीक है, तो ये सर ये रियल स्टोरी है? नो 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 नो, इमेजिनरी। ये रियल हो सकता है क्या? ओके, सो हाँ सर। यहाँ तक पढ़ लेते हैं आज। समटाइम्स विदेशिया बाबू was heard singing, myself विदेशिया बाबू doing crazy things, yes जी, if problem develop I glad to help, happy inventoring जी। so वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं। ठीक है, सुर कोई भी लगा सकते हो। myself विदेशिया बाबू doing crazy thing, yes जी, if problem develop I glad to help, happy inventoring जी। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर एक आईएनजी फॉर्म मिला, सिंगिंग। तो बताओ मुझे ये सिंगिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरेंड है? जिरेंड। Sir, present participle because प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन है। sir गाते हुए सुने जाते थे, तो इसमें ना नहीं आ रहे, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, गुड। और सर इसका कोई एडजेक्टिव भी नहीं है ऐसा ब्यूटीफुल वगैरह, इन गुड वॉइस ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अरे वाह, क्या बात है, शाबाश, तालियां बनता है तुम लोगों के लिए। ठीक थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अभी देखो जिन्होंने जिरेंड कहा, देखो बेटा कोई बात नहीं, समझ लो इस चीज को। अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, सिंगिंग इज माय हॉबी, तो फिर वो जिरेंड होता। क्यों होता? क्योंकि वो नाउन जैसा यूज होता। मतलब सिंगिंग इज माय हॉबी, गाना गाना मेरा हॉबी है। लेकिन यहाँ पर
सिंगिंग का मतलब क्या है? गाते हुए। फिर से मैं बोल रहा हूं, ते हुए, ता हुआ, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। गाता हुआ, पढ़ता हुआ, सुनता हुआ, बैठता हुआ, ठीक है, देखता हुआ। आई फाइंड हिम वॉचिंग टीवी, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब वॉचिंग टीवी को अगर सेंटेंस के पहले रख दो और उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब